Dear students, today our topic is general methods for the preparation of carboxylic acids. कल मैंने आपको पढ़ाया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो मैंने कहा था those organic compounds which contain C double bond C double bond OH as their functional group. They are known as carboxylic acids. In these carboxylic acids, in this functional group, the carbon atom is linked on one side, by oxygen atom to a double bond, and on the other side by hydroxyl group by a single bond, and the third side is linked by hydrogen atom or an alkyl or an aryl group. तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड का तो मैंने बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यानी COOH. These carboxylic acids these carboxylic acids, this carboxyl group, it contains carbonyl group and hydroxy group. It is a combination of carbonyl group and hydroxy group, which is derived from carb is derived from carbonyl, and oxyl is derived from hydroxy group. Therefore, this group is known as carboxyl group. तो लेकिन आजकल तो these are called there are aliphatic and aromatic hydrocarboxylic acids. Aliphatic hydrocarboxylic acids are those carboxylic acids in which the COH group, this is carboxyl group, is attached to an alkyl group. It is attached to an alkyl group. These are also called the fatty acids. मैंने कल ही बताया कि इनको fatty acids का भी नाम दिया जाता है, aliphatic carboxylic acids को, because they are formed by the hydrolysis of oils and fats, and they occur as triglycerides. तो कुछ एग्जांपल्स में भी मैंने बताए थे, मतलब हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, और मैंने आपको नोमेनक्लेचर भी पढ़ाया. लेकिन असली जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज द जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके जरिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो नंबर 1, पहली प्रिपरेशन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वो फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स. तो जब अल्कोहल्स मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल्स को कैसे एस्टल्डिहाइड्स में तब्दील किया जाता है. फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, primary alcohols are converted. Primary alcohols on oxidation in the presence of acidic or alkaline KMnO4, which act as oxidizing agents, or acidic K2Cr2, that is potassium dichromate. Primary alcohols undergo oxidation. Primary alcohols undergo oxidation in the presence of acidic or alkaline KMnO4 or acidic K2Cr2O7, acidic potassium permanganate or acidic potassium dichromate. First of all, they get converted into aldehydes, and these aldehydes are further oxidation give carboxylic acid. तो पहले मैं आपको एक रिएक्शन लिखूंगा इसकी कि ये कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, फिर इसकी आप डेफिनेशन खुद एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं. हम लिखेंगे द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज RC double bond OOH. This is the general formula of carboxylic acid. This is carboxylic acid. These are carboxylic, लेकिन हमें लिखना है अल्कोहल्स की RCH2OH. तो अगर हम उसको ऑक्सीडेशन करेंगे इन द कैटलिस्ट ऑर्गन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्कलाइन और एसिडिक KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7. These are oxidizing agents. In the presence of these oxidizing agents,
इसमें वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, इट विल गिव वाटर मॉलिक्यूल, तो फिर ये बनेगा RCHO, RCHO तो अल्डिहाइड, दिस इज एन अल्डिहाइड, अल्डिहाइड which on further oxidation, addition of oxygen which on further oxidation, ये ऑक्सीजन इसमें हो जाएगा RCOOH, RCOOH, this is carboxylic acid, this is carboxylic acid. तो मैंने बताया ये this is the general preparation of carboxylic acids, यानी primary alcohol, this is a primary alcohol, primary alcohols undergo oxidation in the presence of alkaline or acidic KMnO4 or acidic potassium dichromate to form aldehydes first, which on further oxidation give carboxylic acid. तो इसी तरह मैं आपको दिखाऊंगा कुछ एग्जांपल्स इसकी, बिल्कुल वही. फॉर एग्जांपल अगर R को हम रिप्लेस करेंगे CH3 से, CH3 फिर लिखेंगे CH2COOH, CH3COOH, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एंड दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल. तो फिर इसको करेंगे ऐड ऑक्सीजन, जिसकी वजह जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देता है ऑक्सीडेशन के लिए, यानी कि K2Cr2O7, K2Cr2O7, KMnO4 भी बिल्कुल वही कैटलिस्ट अल्कलाइमीड में, तो ये देगा CH3CHO, CH3CHO, इसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, CH3CHO एसिटल्डिहाइड, प्लस इसका यहाँ से निकलेगा वाटर, तो इसको फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, जब फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे ये बनेगा CH3COOH, CH3COOH, तो इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड. गो इथाइल अगर आपको पूछा जाएगा प्रिपरेशन ऑफ, आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एसिड, तो आप देखोगे बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, सिंपली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल. फिर लिखोगे इथाइल अल्कोहल पर ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट acidic or alkaline KMnO4, it loses the water molecule to form acetaldehyde and further oxidation gives acetic acid. तो अंग्रेजी में जब आपको एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो आप लिखोगे इथाइल अल्कोहल undergoes oxidation in the presence of potassium dichromate or potassium permanganate to form acetaldehyde, which on further oxidation gives acetic acid. तो अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे C6H5CH2OH से, तो ये CH2OH है, CH2OH से, तो ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल, इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल. अगर इसको ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑन ऑक्सीडेशन इट विल गिव, कैटलिस्ट हुई है Cr2O7, KMnO4, तो ये होगा, इधर देगा C6H5CHO, इसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड, इसको कहते हैं, या अगर एस्टल्डिहाइड है ये बेंजल्डिहाइड है. तो प्लस ऑक्सीडेशन करेंगे, ये होगा C6H5COOH, तो इसको कहेंगे बेंजोइक एसिड. तो इसका मतलब है आपको एसिटिक एसिड भी बन गया, बेंजोइक एसिड. अगर आपको बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन पूछा जाएगा तो आप कहोगे, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे फ्रॉम बेंजाइल अल्कोहल on oxidation in the presence of oxidizing agents potassium dichromate and potassium permanganate give benzaldehyde, which on further oxidation gives benzoic acid. तो एक preparation ये है, from primary alcohols, या देखोगे by the oxidation of primary alcohols undergo oxidation in alkaline or acidic medium with oxidizing agents potassium dichromate and potassium permanganate to form first aldehydes, which on further hydrolysis give carboxylic acids. For example, when ethyl alcohol undergoes oxidation in the presence of potassium dichromate and potassium permanganate to give acetaldehyde, which on further oxidation gives acetic acid. Same is the case with benzyl alcohol. अच्छा, उसके बाद फिर by the oxidation of, ख्याल रखना, aldehydes, direct aldehydes.
उधर पहले एस्टिक अल्कोहल्स को ऑक्सीडेशन होती फिर अल्डेहाइड्स बनाते थे, तो फिर अल्डेहाइड्स को मजीद ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था। लेकिन यहाँ बाय द डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ aldehydes can be directly converted into the aldehydes can be directly oxidized into the carboxylic acids in the presence of mild Tollen's reagent which acts as an oxidizing agent. Tollen's reagent. तो what is Tollen's reagent? आपने पढ़ा होगा Tollen's reagent क्या होगा? Tollen's reagent, it is a solution, it is a reagent which is used to detect the presence of aldehydes and ketones. It is a reagent which is used to detect the presence of aldehydes and ketones. तो यहाँ क्या असली what is the combination of this Tollen's reagent? It is a combination of silver nitrate. It is a combination of silver nitrate, ammonia, and some sodium hydroxide. तो इसकी जनरल फार्मूला क्या है? इसकी फार्मूला है AgNH3 whole twice NO3. इसको कहते हैं diamine silver nitrate. And this is Tollen's reagent. Why it has been named Tollen's reagent? Because it has been named after the discoverer Bernhard Tollen. Bernhard Tollen, who was a German chemist. तो आपको समझ आ गया, ये मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया कि यानी ये Tollen's reagent जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है जब अल्डेहाइड्स को कन्वर्ट करेंगे किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो ये Tollen's reagent क्या है? ये लगता है यानी ये टेस्ट करने में ये डिटेक्ट करता है अल्डेहाइड प्रेजेंस ऑफ अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स इन द सॉल्यूशन। तो ये असल में ये क्या है? ये इसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है और अमोनिया होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्योंकि ये रिएजेंट जो बनाया है ये इसकी जनरल फार्मूला ये है यानी AgNH2NH3 whole twice NO3। इसकी जनरल फार्मूला जो है ये सॉल्यूशन जो है ये डिस्कवर किया है बर्नहार्ड टोलन ने। उसका नाम था BERNHARD बर्नहार्ड टोलन। ये बर्नहार्ड टोलन कौन था? ये जर्मन का एक केमिस्ट था जिसने ये डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम रखा गया है Tollen's reagent। ये इसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन बीच में मैंने आपको दे दी, आप सोचोगे ये Tollen's reagent क्या है। तो by the oxidation of aldehydes undergo oxidation into the carboxylic acids in the presence of mild Tollen's reagent. Simply लिखोगे RCHO plus oxygen, इससे डायरेक्ट aldehydes को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? यहाँ लिखोगे mild Tollen's reagent। Tollen's reagent तो मैंने बताया mild Tollen's reagent, इसको कहेंगे RCOOH। तो ये हो गया RCOH, या इस तरह लिखोगे RC डबल बॉन्ड OH, ये भी वही हो गया। इसका ये जनरल फार्मूला है किसका? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है अल्डेहाइड, सिंपल अल्डेहाइड। यानी अब हम इसी अल्डेहाइड को इस R को करेंगे कन्वर्ट CH3 से, यानी अल्काइल ग्रुप को वैल्यू दे देंगे। यानी ये R इज द अल्काइल ग्रुप और मिथाइल भी एक अल्काइल ग्रुप है CH3OH प्लस ऑक्सीडेशन करेंगे कैटलिस्ट फिर वही, तो ये बनेगा CH3COOH और इसका नाम है एसिटिक एसिड। तो अब दूसरी प्रिपरेशन बन गई है आपको, दूसरी प्रिपरेशन वेरी इजी प्रिपरेशन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ aldehydes in the presence of, इतना ही लिखोगे, in the presence of mild Tollen's reagent. Aldehydes undergo oxidation in the presence of Tollen's reagent to form carboxylic acid. For example, when acetaldehyde undergoes oxidation in the presence of Tollen's reagent, form acetic acid. This is the second preparation used for carboxylic acid. The third preparation from nitriles. या लिखिए by the hydrolysis of nitriles.
by the hydrolysis of nitriles, NITRILES, by the hydrolysis of nitriles. What are nitriles? Nitriles are the compounds, whether they may be alkyl compounds or aryl compounds, which contains cyanide group, CN. When they are, अगर हम cyanide group को हम cyanide पढ़ते हैं, लेकिन नामन करे IUPAC सिस्टम में उसको हम पढ़ते हैं नाइट्राइल. अगर NC होगा तो इसको आइसोसाइनाइड पढ़ते हैं, लेकिन IUPAC नेम उसमें आइसोनाइट्राइल. तो अब आपको आ गया समझ, यानी नाइट्राइल्स आर द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन CH ग्रुप. ये तो समझ आया मैंने. नाइट्राइल from the hydrolysis of which contains CN group, यानी C double triple bond N, which contains cyanide group. By the hydrolysis of cyanides undergo hydrolysis. Cyanides undergo hydrolysis in the presence of an acid. Cyanides undergo hydrolysis in the presence of an acid which donate a proton. When they undergo hydrolysis, they form carboxylic acids. For example, RC triple bond N. ये ट्रिपल बॉन्ड N ये हो गया अल्काइल नाइट्राइल. ये ट्रिपल बॉन्ड आपको समझ आया होगा. ये ट्राइवेलेंट है, ये टेट्रावेलेंट है, तो ये वैलेंसी बराबर होगी R ट्रिपल बॉन्ड N प्लस HOH. HOH आपको समझ आया होगा, ये H2O वाटर है, क्योंकि ये पॉजिटिवली हाइड्रोजन है, ये नेगेटिव. इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड it undergoes hydrolysis to form RCOOH. RCOOH. तो इसको ट्वाइस कर दो, ये बनेगा RC, 2 O आगे इधर हो गए OOH. फिर यहाँ से फिर H3 रह गई, क्योंकि 4 H है, और NH यहाँ बनेगा NH3. इसको हम कहते हैं अमोनिया. ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ये बन गया एसिड, ये निकल गया बाय प्रोडक्ट अमोनिया, NH3 अमोनिया. तो आपको समझ आ गया. अल्काइल नाइट्राइट्स undergo hydrolysis in the presence of an acid to form carboxylic acids with the liberation of ammonia. तो अगर हम इसको लिखेंगे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको कहेंगे इथेन नाइट्राइल. इथेन, ये 2 कार्बन है, इथेन नाइट्राइल, या पढ़ेंगे हम इसको मिथाइल साइनाइड, सिंपल नेम. तो प्लस करेंगे इसी तरह ट्वाइस HOH या ट्वाइस H2O, जिस तरह आप करोगे, तो ये बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो ये बनेगा CH3 COOH प्लस अमोनिया. तो अगर बेंजोनाइट्राइल लिखोगे, C6 इसको कहते हैं बेंजोनाइट्राइल, प्लस 2 times H2O, ये it will give C6H5COOH प्लस अमोनिया. ये जिसको ये फार्मूला आएगी, फिर यहाँ रिप्लेस जब करेंगे हम मिथाइल ग्रुप से, तो ये बनेगा एस्टिक एसिड. जब फिनाइल ग्रुप से इसको रिप्लेस करेंगे तो बेंजोइक एसिड. अगर आपको बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन होगी, आप देखोगे मिथाइल फिनाइल साइनाइड या बेंजोनाइट्राइल undergoes hydrolysis in the presence of mineral acid to give benzoic acid. इसका नाम है benzoic acid, और इसका नाम है acetic acid. ये मिथाइल साइनाइड, हम इसको इथेन नाइट्राइल का नाम पढ़ सकते हैं. नाइट्राइल, इसको पढ़ेंगे फिनाइल साइनाइड. This is the third preparation which is used for the preparation for carboxylic acids, यानी by the hydrolysis of nitriles. Nitriles मैंने कहा है, nitriles are the compounds which contains cyanide group. तो ये alkyl nitride RC triple bond N, alkyl nitride, this is the hydrolysis, it gives carboxylic acid plus ammonia. तो फिर इसको रिप्लेस किया मिथाइल ग्रुप से, तो ये इसने दे दिया यहाँ R की जगह CH3, तो बन गया एस्टिक एसिड. जब इसको फिनाइल से रिप्लेस किया, तो यहाँ बन गया CH5, तो ये बेंजोइक एसिड बन गया. दिस इज द थर्ड प्रिपरेशन फॉर these carboxylic acids. Then fourth preparation.
by the hydrolysis of esters, by the hydrolysis of esters. एस्टर्स की फार्मूला है, जनरल फार्मूला RCOOR डैश. ये भी अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप है. RCOR भी लिख सकते हैं. Esters undergo hydrolysis in the presence of mineral acids, to form carboxylic acids. For example, हम esters को लिखेंगे RCOOR डैश लिखेंगे. फिर इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, एडिशन ऑफ वाटर. तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये आएगा, ये इधर जाएगा, तो ये बनेगा RC, ये OH ग्रुप इसके साथ आएगा, ये बनेगा R-OH प्लस RCOO, और ये H आएगा इसके साथ, ये इस तरह बनेगा. इस तरह देखिए, RCOOR डैश प्लस HOH, तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, ये इसके साथ जाएगा, ये बनेगा R-OH, ये बनेगा RCOOH. तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो साथ में निकल गया बाय प्रोडक्ट अल्कोहल. ये अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड. यानी esters undergo hydrolysis in the presence of mineral acid, and the presence of mineral acid to form carboxylic acid, which is the main product. तो इसी तरह हम लिखेंगे CH3COO2H5. तो मैंने आपको पहले भी बताया CH3COO इसको कहते हैं एसीटेट. इसकी नेट चार्ज माइनस है, इट इज एसीटेट. जब इसके साथ यहाँ इथाइल है तो नाम क्या पढ़ेंगे? इथाइल एसीटेट. ये अब ये एस्टर है, चूंकि इसको RCOR ग्रुप है, प्लस लिखेंगे, प्लस करेंगे हाइड्रोलिसिस HOH, दैट इज H2O. तो ये OH अलग है, ये इस तरह है, ये OH इसके साथ मिलेगा, यहाँ बनेगा CH in the presence of an acid, this is an acid, CH3COO. तो ये H आएगा, ये हो गया एस्टिक एसिड, प्लस निकलेगा C2H5OH, तो ये बनेगा इथाइल अल्कोहल. तो ये एसिटिक एसिड. इसी तरह अगर इसको हम रिप्लेस करेंगे C6H5 से, तो यहाँ निकलेगा बेंजोइक एसिड. दिस वाज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स.